Namaskar. Welcome to this wonderful session. Andarki swagatam. And I welcome all to this program one more time, and I am very pleased to announce that we here have with you Dr. Manmohanji Vaidya, and I invite him onto the stage. Sir, please come onto the dais. He is the author of the book We and the World Around. Please. Dhanyavad, Dr. Vaidya ji. And now I request Professor Amba Kulkarni ji to come onto the dais and take her seat. Ma'am. Please be seated. Thank you, ma'am. Now I request Ms. Shailaja ji to come and take a seat on the dais. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Vaidya ji, Dr. Amba Kulkarni ji, and Ms. Shailaja ji. And we will start the program with Bharat Mata Puja. And I request the dignitaries, Dr. Manmohan Vaidya ji, Dr. Professor Amba Kulkarni ji, and Shailaja ji to come forward and start Bharat Mata Vandana. I request Shashank ji to come forward and sing Vande Mataram. We all will stand. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam Malayaj Sitalam Sasya Shamalam Mataram Vande Mataram Subhrajyotsna Pulakitayamini Pullakusumita Dumadala Shobhini Suhasini Sumadhura Bhashini Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Koti Koti Kantha Kala Kala Ninada Karale Koti Koti Bhujair Dhruta Kara Karavale Abala Keno Maet Bale Bahubaladharinim Namami Tarinim Ripudalavarini Mataram Vande Mataram Tumi Vidya Tumi Dharma Tumi Hrudi Tumi Marma Tvam hi prana sharire bahute tumi ma shakti hridaye tumi ma bhakti तुम्हारे प्रतिमा गौड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। Actually, this is just not a book. This is compilation of articles written by Dr. Manmohanji Vaidya, and I am honored to give a brief introduction about the book. And also this book and other books, very valuable books, very informative books, they are available in the lawn outside, and there are different payment options. I request you to go ahead and purchase books and do not miss this opportunity. As I mentioned before, We and the World Around. This is a compilation of numerous articles by Dr. Manmohanji Vaidya. This book covers lots of topics. It's not covering, it's uncovering the topics, uncovering the misconceptions and clearing the misconceptions. And this book articulates the goals, the activities, the operation methods of Sangha. And also there is lack of accurate information among the general public and also among the scholars within India and outside India about Sangha. And this has led to misconceptions about Sangha. This book is a treasure of information to befit the misinformation that's spread through media. And also there is a wonderful depiction of journey of Sangha and its monumental expansion in various phases, 4 phases to be precise, and also how the vision of Dr. Hegdewar is being carried by each Swayamsevak. And the motto of Sangha, as mentioned in the book, is articulated in a song. The song goes like this: Karya Magnata Jeevan hai, Karya Purti hi Vishranti. We do not rest until we reach our goal. And the book also demonstrates that Bharat has always been inclusive and tolerant. Inclusiveness is not new to us. Somebody did not come and teach that concept to us. And Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti, Vasudhaika Kutumbakam. These are just few examples of how our thought process about has been and how inclusive we have been for centuries. And also many words and phrases in our native languages and in Sanskrit, they do not have an equivalent English word. They do not have a synonymous word in English. And that's one of the reasons why our texts have been translated to English, and also how the essence has been lost either knowingly or unknowingly. So that's, and also we are learning about our roots in that language. So the connect has been lost. And this has been clearly demonstrated in the book, in the articles by Dr. Vaidya ji. And also the article uncovers a wide array of topics, like how are tribals part of Hindus? They are part of our ancient Sanatan Dharma or not? This is one of the narratives that's being spread recently. And also it covers how our existence and identity, our astitva, is based solely on Sanatana Dharma. And also it brings out the relevance of Bharat in the modern times, and also how to handle and how to get rid of problems like pseudo-secularism, and how the leftists, because there are leftists sitting there, how we have been branded right-wing by many people. And also we accepted that and we move on. We accepted the name given to us, we accepted the name, the term like
right wing given to us. And Dr. Vaidyaji clearly explains how these narratives have been spread and how to handle them and what is the context of all the narratives. And also reclaiming the temples, be it Ayodhya, be it Somnath, they are just not part of some agenda. They are not vote bank politics. How this is very, very important for our existence is also clearly depicted in all these articles. And each article is like a very valuable diamond. I mean, it is just not one topic that he talks about. There are numerous topics. All these topics, we come across those problems in our day-to-day life. In our day-to-day life, we have to prove that, our culture is very inclusive, that we are not exclusive, how acceptable we are. We have to prove that in our day-to-day lives, in our professional life, and also everywhere we go, we have to prove our culture and our roots. Most of us, even though have good intentions, do not have the right information, and we are not equipped well. This array of articles is an answer to the questions that most of us have, and also it's articulated in a wonderful, simple way that we all do understand. And Dr. Hegdewar's roadmap, and also the roadmap of Akhanda Bharat that's laid down by many, many legends like Dr. Hegdewar, Dattopant Dhengdeji, has been wonderfully explained in this book. And also Dr. Vaidyaji has got his inspiration from his father. Generally, mother and father, they are our first teachers. They are our role models. Most of the things that we subscribe to today are passed on to us from our mother and father. He got this inspiration from his father, and there is one article about his father and how, as a Swayamsevak, as a Karyakarta, how was his journey, and how he used to manage money, even things like money management that are useful for us in day-to-day life, how his father used to do it, and how things are done in Sangha, what is the modus operandi. It is all explained in a very wonderful way. And I urge all of you to read the articles and also, collect that information, be more equipped, be more informed. And the roadmap to Akhanda Bharat is just not one man's dream, and it's just not one man's task. All Swayamsevaks, all of us are part of it, and for us to tread on that path, this book is like a torchlight. It will lead us on that path, on that marga. And I'm very, very honored and enlightened. I'm very honored to be part of this program. And I give the mic to my colleague Arpit ji. He will introduce our honorable guests today. Thank you. Have a book launch soon after the introduction of guests. Namaste. Dhanyavad Hemlata ji. Dr. Manmohan Ji Vaidya, originally from the Nagpur, holds a PhD in chemistry and spent few years as a lecturer. In 1983, he joined Rashtriya Swayamsevak Sangh as a Pracharak. Over the years, he has taken the numerous responsibility within the organization. From 2009 to 2018, he served as a Akhil Bharatiya Prachar Pramukh, managing media relation and communication for RSS. Between 2018 to 2024, he held the position of Sah Sar Karyawaha. Currently, he is Akhil Bharatiya Karyakarni Sadasya. Dr. Vaidya is known for his avid reading and prolific writing. He has a remarkable ability to explain complex topics in a way which is easy to understand. Welcome, Manmohan ji. Now I would be giving a brief introduction of Professor Amba Kulkarni ji. Dr. Amba Kulkarni ji is a founder head of Department of Sanskrit Studies at the University of Hyderabad and a renowned computational linguist. She is dedicated to demonstrating the relevance of Indian grammatical tradition in the field of computational linguistics. Under her leadership, several computational tools for Sanskrit, including the prototype of the Sanskrit Hindi machine translation system, has been and are being developed.
In 2015, she was honored with the Vishisht Sanskrit Sevarthi Sammana by Central Sanskrit University for her contribution to Sanskrit-based knowledge systems. Dr. Kulkarni has been also a fellow at IIAS Shimla and has served as a visiting faculty at IIT Ropar, IIT Bhubaneswar, EPH Paris. Recently, she has authored a book titled Sanskrit Parsing based on the theory of Shabdbodha, published jointly by Indian Institute of Advanced Studies Shimla and DK Print World. She is also recently awarded prestigious Indica Award. Welcome, Amba Kulkarni ji. Now I will welcome Shailja ji. Shailja ji has been working in the social sector for over 2 decades. She is currently the Vice President at Samvid Kendra. She is also a director at Samvid Prakashan and Media, a firm that publishes books on the national issues. Welcome, Shailja ji. Sadar Pranam to Akhil Bhartiya and Kshetra Adhikari who are with us today. We are honored to have you with us in this session. Sadar Swagatam to Shri Sunil Bhai Mehta ji, Akhil Bhartiya Bauddhik Pramukh. Sadar Swagatam to Shri Deepak Vispute ji, Akhil Bhartiya Sah Bauddhik Pramukh. We extend a warm welcome to all our Vishisht Adhikari and Karyakarta of Sangha. Now I will hand it over to stage to Hemlata ji for further activities. Yeah, actually, before the session, we'll have the book launch first. I request Dr. Amba Kulkarni ji to address the gathering. Just a reminder before that, and we'll have an interactive session after the speeches by our honorable guests. So be prepared with your questions. So the session, an interaction session is also, it's coming out shortly. Thank you. I request Professor Amba Kulkarni ji to address the gathering. आदरणीय वैद्य जी, आदरणीय शैलजा जी, उपस्थित स्वयंसेवक, मैं सर्वप्रथम मुझे यहाँ बुलाकर आपने जो अध्यक्षता निभाने का दायित्व दिया है उसके लिए आप सब लोगों के, विशेष करके जो कार्य करता है इस विशेष कार्यक्रम के, उनके मैं आभार व्यक्त करती हूँ। I myself am not a संघ कार्यकर्ता। नियमित रूप से नहीं, परंतु अनियमित रूप से मैं संघ के कार्यक्रम अटेंड करती रहती हूँ बचपन से, परंतु नियमितता मुझ में नहीं है जो संघ में अपेक्षित है, क्योंकि मेरा पूरा जो समय है, मैंने जो एक कार्य हाथ में लिया है उसके लिए समर्पित हूँ, इसलिए मैं बाकी विषयों के ऊपर ध्यान नहीं देती और उस कारण मैं विशेष करके संघ के कार्यक्रम अटेंड नहीं करती, परंतु उसके बारे में सोचती रहती हूँ और पढ़ती भी रहती हूँ। तो जब मुझे ये कहा गया कि पुस्तक जो है वी एंड द वर्ल्ड अराउंड, तुरंत मेरे मन में दो चीज़ें आई। एक है हमारा इनसाइड वर्ल्ड और एक आउटसाइड वर्ल्ड। तो उसके बारे में मुझे दो प्रसंग गोलवलकर गुरुजी के
जो चरित्र में पढ़ रही थी उसमें से याद आए, उनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। उनके इनर वर्ल्ड के बारे में एक एनेक्डोट है। एक बार वो बीमार थे और उनको एग्स खाने के लिए कहा गया था, अंडा खाना है। अब समस्या आ गई, उनके सामने अहिंसो परमो धर्मः, नॉन वायलेंस है। फिर उन्होंने, अब वो देखिए कैसे केवल 6 तर्क लगाए उन्होंने, 6 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मुझे एग्स खाने चाहिए, और उनके आर्ग्यूमेंट्स मैं सुनाना चाहती हूँ। तो पहले उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। फिर उनको कुछ याद आया, ये कहीं लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। तो अ वीक बॉडी कैन नॉट रियलाइज आत्मा। तो एग जो है उसमें वीक बॉडी है, उसमें आत्मा लभ्य नहीं है उसको। दूसरा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो यदि हेल्दी शरीर नहीं है तो आप कार्य कैसे करोगे। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद उन्होंने और एक उनको युक्ति याद आई, औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। औषधि मेडिसिन जो है वो एज इफ गंगा का पानी है, और वैद्य जो है हरि के जैसा है। और फिर किम कर्म किम अकर्म इति कवयोः अपि अत्र मोहितः। कवि या जो विचारवंत है वो भी क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें मोहित हो जाते हैं, भ्रम हो जाता है उनको। मैं कौन हूँ इसको जज करने के लिए। और फिर उन्होंने जो डॉक्टर ने कहा था उसको मान लिया और उन्होंने कुछ दिन एग्स खाए। ये था उनका इनर वर्ल्ड, जहाँ वो उनकी पूरी थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। आउटसाइड वर्ल्ड यदि देखते हैं तो वो जब नागपुर में थे ऑलमोस्ट सब जगह वो बहुत घूमते थे। ही यूज़ टू वॉन्डर अ लॉट, वॉकिंग बहुत करते थे। तो जब ये सब वॉकिंग कर रहे हैं वो अपने विचार तो उनके चल रहे हैं, परंतु बाहर जो चल रहा है उसको भी ध्यान दे रहे थे वो। तो एक बार कॉलेज में कुछ बात हो रही थी और किसी प्लांट की बात हो रही थी, ये कहाँ मिलेगा। तुरंत उन्होंने कहा वहाँ एक नाला है, उस नाले में जाइए, वहाँ पास में आपको वो पेड़ मिल जाएगा। तो इतनी उनकी ऑब्जर्वेशन पावर। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। इंटरनली आप कंसिस्टेंट रहे आपके थिंकिंग से, और बाहर जो चल रहा है उसका भी पूरा ध्यान रखिए। वैसे अभी थोड़े देर पहले ही वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र हुआ था। मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मुझे ज्ञानेश्वरी की पंक्तियाँ याद आ गई। हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणाची जाहला। तो ये विश्व जो है माझे घर, ऑल दिस एंटायर वर्ल्ड इज़ माई होम, एंड God resides in every particle of this world. And the one whose mind is stable on such thoughts, he belongs to God, or God is with him. वसुधैव कुटुंबकम ये जो पंक्ति है, ये जो छोटा सा पाठ है, वो सामवेद के एक महाउपनिषद से लिया गया है। और उसमें जो पूरा जो श्लोक है वो इस तरह से है, अयम बंधुः अयम न इति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा बंधु है, ये नहीं है। ये जो मति है, ये जो मीन माइंडेड होते हैं उनकी थिंकिंग ऐसे होती है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम।
जो उदार चरित होते हैं, जो उदार होते हैं, उनके लिए तो ये पूरा विश्व जो है, वसुधा जो है, वो ही उनका कुटुंब है। कुटुंब से मुझे याद आया, हमारे यहाँ हमने संस्कृत से काफ़ी शब्द लिए हैं, जैसे संसार, कुटुंब। संसार तो जगत को कहते हैं, परंतु यदि संसार मराठी में देखते हैं तो वो परिवार तक सीमित हो जाता है। और एक बार मुझे एक तमिलियन ने बताया कि हम पत्नी के लिए संसार शब्द का उपयोग करते हैं, तो उनका विश्व जो है केवल पत्नी तक सीमित हो गया। और मलयालम में संसार शब्द का उपयोग वार्तालाप या कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। तो इस तरह शब्दों के विभिन्न अर्थ बदलते गए हैं। और परंतु फिर भी मैं पीछे इसमें आती हूँ, यहाँ हमें संस्कृत के जो शब्दों का अर्थ है, संस्कृत में जो अर्थ है वो लेना है, न कि अपनी मातृभाषा में जो अर्थ है, क्योंकि हम संस्कृत के जो श्लोक है उनको उद्धृत कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ हमें पूरा जगत लेना है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो पुस्तक है, ये 100 साल हो रहे हैं संघ के, और उस स्थिति में ये पुस्तक आ रही है। हमेशा सिंहावलोकन का हमारे आयुष्य में एक बहुत बड़ा महत्व है। सिंह अवलोकन, अब ये सिंह अवलोकन क्या होता है? जैसे सिंह जो है अपनी जो भी शिकार है उसको वो पूरा खाता नहीं है, थोड़ा ही खाता है और आगे चला जाता है। उसका पेट भर गया, वो आगे चला जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। वो क्या देख रहा है? वो जो उसने छोड़ा हुआ है वो बाकी लोगों के लिए, बाकी जो प्राणी है उनके लिए उसने छोड़ा है। वो देखता है कि हाँ वो सुरक्षित है और फिर वो आगे चला जाता है। तो सिंहावलोकन में पीछे देखना, अभी आज की स्थिति जो है उसको देखना और फिर आगे चले जाना। पीछे अब वो छोड़ दिया, वापस आके वो नहीं खाएगा। पीछे जो था वो चला गया है, आप आगे चलते रहिए। चरैवेति। तो इसी के साथ मैं मेरा अध्यक्षीय भाषण समाप्त करती हूँ। मैं बहुत ही उत्सुक थी ये पुस्तक पढ़ने के लिए। मैंने पूछा भी था कि क्या मिल सकता है, तो कहा कि नहीं, अभी जब पब्लिकेशन होगा तभी हाथ में मिलेगी कॉपी। परंतु फिर भी मैंने अमेज़ॉन में जाके थोड़ा सा उस पुस्तक के बारे में पढ़ने की कोशिश की और कुछ सारांश उसका मिल गया है। आई एम वेरी मच ईगर टू रीड दिस बुक एंड लिसन टू Vaidya ji, and of course I will be very much interested in having the question answering session. So thank you very much once again for giving me this opportunity. Namaste. धन्यवाद Professor Amba Kulkarni ji for your valuable and enlightening words. And now I request Dr. Manmohan ji Vaidya to address the gathering. मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय अंबा जी, आदरणीय शैलजा जी और उपस्थित सभी आत्मीय भाइयों बहनों, वैसे पुस्तक के बारे में तो काफ़ी कुछ कहा गया है, तो मैं पुस्तक के बारे में कम कहूँगा, लेकिन भारत के बारे में कहूँगा। इस पुस्तक का विषय वही है, भारत ही है। टाइटल है वी एंड द वर्ल्ड अराउंड, हाउ वी एज भारत व्यू द वर्ल्ड डिफरेंटली देन द वर्ल्ड व्यूज द वर्ल्ड। एक बड़ा अंतर है। और भारत की विशेषता है, सदियों से है, वो क्यों है, क्या है, इसको हम जानेंगे तो भारत के भविष्य की दिशा हम तय कर सकेंगे। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान इन देशों का बहुत
स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था युद्ध में, वो युद्ध भूमि ही थी। उन्होंने 1945 के बाद अपने देश को फिर से खड़ा करने की शुरुआत की। 1948 में इजराइल ने लिटरली फ्रॉम स्क्रैच, शून्य से 1800 वर्षों के बाद अपने भूमि पर जाकर, जहाँ संसाधनों की कमी, स्केर्सिटी और सतत संघर्ष, रोज लड़ाई, ऐसे कार्य आरंभ किया और 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। भारत का जापान, जर्मनी, इंग्लैंड जैसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ था, न ही इजराइल जैसी एकदम विपरीत परिस्थिति भारत में थी। शून्य से शुरुआत नहीं करनी थी। हमारे पास संसाधन थे, ह्यूमन पावर थी, टैलेंट, शक्ति, एक रिच हिस्ट्री, एक परिपूर्ण जीवन, जीवन का दृष्टिकोण, ये सारा था। लेकिन इन लास्ट 70 ईयर्स में इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, इन देशों ने जितनी प्रगति की है उतनी भारत ने नहीं की है। भारत ने बिल्कुल प्रगति नहीं की ऐसा ही नहीं मानता हूँ मैं, लेकिन जितनी करनी चाहिए थी, लुकिंग एट द रिसोर्सेस, टैलेंट, कैपेसिटी, लीगेसी एंड एवरीथिंग, उतना भारत नहीं कर सका। क्यों, ऐसा प्रश्न मन में आता है। तो एक सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है हु आर वी, उसमें वो लिखते हैं कि अनलेस वी डिसाइड हु वी आर एज ए पीपल, वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट आवर प्रायोरिटीज कैन बी। एक राष्ट्र के नाते, समाज के नाते हम कौन हैं, यह जब तक हम तय नहीं करते तब हमारी प्राथमिकता है, हमारी दिशा हम तय नहीं कर सकते। उन्होंने अमेरिका के बारे में खूब चर्चा की है, समय कम है, मैं उस पर अधिक नहीं जाऊंगा, पुस्तक पढ़ने जैसी है। तब ध्यान में आया कि इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, इन देशों में वहाँ भी डेमोक्रेसी है, राजनीति है, दल है, चुनाव होते, स्पर्धा है, परंतु इन चारों देशों के लोगों में, सभी लोगों में हम कौन हैं, हु आर वी, हमारे पुरखे कौन थे, हमारे एंसेस्टर्स कौन है, हमारी हिस्ट्री क्या रही, हमारी गलती क्या हुई, उसके बारे में देयर इज यूनैनिमिटी, एक मत सब है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। और दुनिया के सभी देशों में केवल भारत ऐसा एकमात्र देश है, द ओनली कंट्री, जहाँ के लोगों में आज भी हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, हमारा इतिहास क्या था, हमारी पहचान क्या रही है, इसके बारे में यूनैनिमिटी नहीं है, हम एक मत नहीं है। टू डिफरेंट आइडियाज ऑफ भारत, इसके बीच में असली संघर्ष है। इसलिए हमारी रक्षा नीति, हमारी शिक्षा नीति, हमारी विदेश नीति, हमारे अर्थनीति, हम कौन हैं, इतना रिच हमारा हेरिटेज है, समृद्ध है, प्रॉस्परस रहा है, वेलर, हमारे पास पराक्रम कम नहीं था, एक अलग अपने जीवन का दृष्टिकोण, एक अलग आइडेंटिटी सारे दुनिया में भारत के बारे में लोग जानते। द वर्ल्ड नोस भारत सिंस एजेस। प्रभात प्रकाशन ने 4 वॉल्यूम्स पब्लिश किए, इंडिया दे सॉ। भारत के बाहर से भारत में आए हुए जितने लोगों ने भारत के बारे में लिखा, भारत कैसे देखा, इसका कंपाइलेशन है, अमेजिंग है। ऐसा भारत रहा है, ऐसा भारत क्यों रहा है? वास्तव में दुनिया को जो भारत पता है वो भारत हम नहीं, ऐसा एक नकारने की फैशन भारत में आज़ादी के बाद चल पड़ी। डिनाइंग व्हाट वी एक्चुअली आर, दैट द वर्ल्ड नोज वेल सिंस एजेस। ऐसे डिनाई करने वालों ने अपने आप को प्रोग्रेसिव, लिबरल, इंटेलेक्चुअल और बाद में सेकुलर कहना शुरू कर दिया। और भारत की बात करने वालों को उन्होंने ये एंटी प्रोग्रेसिव है, ये नॉन ओपन है, ये लिबरल है, कम्युनल है, ऐसे एक नैरेटिव भारत में चल पड़ा,
भारत को ही यह नहीं बताया जा रहा कि भारत क्या है। तो ये भारत को जानना समझना बहुत आवश्यक है। और इसलिए दो आइडियाज कैसी है, अनेक उदाहरण है, मैं एक उदाहरण केवल बताऊंगा। एक लंबे संघर्ष के बाद 1947 15 अगस्त को हम लोग स्वाधीन हुए। भारत के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल, सभी प्रिंसली स्टेट्स ने भारत में अपना एक्सेशन कर दिया था एक्सेप्ट 3 स्टेट्स, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर एंड जूनागढ़। तो 1948 में सरदार पटेल जूनागढ़ गए, उन्होंने वहाँ वो एक्सेशन प्रोसेस कंप्लीट की। वहीं से सोमनाथ पास में है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक की शुरुआती सौराष्ट्र सोमनाथम च से होती है। सारे भारत के लोग वहाँ दर्शन कर लिए जाते रहे सदियों से, आवागमन साधन कैसे भी हो लोग जाते रहे। मंदिर गए, वहाँ का मंदिर के खंडहर देखा, रुइंस देखा तो बड़ी पीड़ा हुई। अब स्वतंत्र स्वाधीन भारत के पहले गृहमंत्री को मन में विचार आया कि इतना प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ का है, एक अच्छा मंदिर बनना चाहिए, बड़ी खराब हालत में है। दिस वॉजंट अगेंस्ट एनीबॉडी। भारत में सोमनाथ मंदिर की अपनी एक गरिमा है, गौरव है। उनके साथ के मुंशी थे जो पंडित नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनको ये काम सौंपा। उन्होंने दोनों ने समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाएंगे। के मुंशी ने एक प्रपोजल तैयार किया आगे बढ़ने के लिए एंड ही शोड इट टू महात्मा गांधी जी। गांधी जी डिड नॉट अपोज द कंसेप्ट, द आइडिया ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिसेंट टेम्पल देयर। उन्होंने एक बहुत महत्व की, जो भारत की सही आत्मा है, ऐसा सुझाव दिया कि ये मंदिर का निर्माण सरकारी खजाने से, ट्रेजरी से नहीं मत करो, जनता के पैसे से करो। इट वॉज वेरी थॉटफुल सजेशन। तो के मुंशी ने वो चेंज किया प्रपोजल और मंदिर कार्य आरंभ बढ़ा। राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत विद्वान थे। 1951 में राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ से इस सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता, स्वातंत्र्य सेनानी थे, विद्वान थे। के मुंशी बहुत विद्वान थे। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इन सब लोग स्टालवर्ड्स थिंकर्स, वो इस तरफ देखते थे इट इज़ नथिंग बट रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ भारत। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना इसके लिए करना है। लेकिन पंडित नेहरू का विरोध था। पंडित नेहरू ने अपना विरोध दर्ज करते हुए ऐसा कहा के मुंशी को, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म। ये दो अवधारणा अलग अलग है। सभी कांग्रेस के लोग हैं, सभी विद्वान हैं, सीनियर हैं। ये 4 लोग जिस घटना को, इवेंट को रिस्टोरिंग ऑफ ग्लोरी ऑफ भारत ऐसा देख रहे हैं, उसको एक व्यक्ति इज लुकिंग इट एज एन एक्ट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म। ये अंतर है। इसलिए जब राजेंद्र प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा के मुंशी ने, तब सरदार पटेल जीवित नहीं थे। पत्र में, ये पूरा पत्र व्यवहार पढ़ने जैसा है। एक अच्छी पुस्तक है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम के मुंशी की, उसमें सारा पत्र व्यवहार स्पीचेस डिटेल में दिए हैं। तो के मुंशी न्यू कि सरदार पटेल कि राजेंद्र प्रसाद जी आने के लिए हाँ कहेंगे और बाद में प्राइम मिनिस्टर मना करेंगे, ही मे कैंसिल द प्रोग्राम, ही शुड नॉट डू इट। इस लेटर में लिखा है कि सरदार पटेल का स्वप्न पूर्ण करने का समय आया है, स्वप्न पूर्ति का। हम सबकी इच्छा है प्राण प्रतिष्ठा आपके हाथ से हो। आगे का वाक्य बहुत महत्व का है। लेकिन आप सही में आने वाले हो तो ही हाँ कहिए, प्लीज डू नॉट फेल अस, ऐसा लिखा है। पत्र अवेलेबल है।
तो अब राष्ट्रपति लिखते हैं कि मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा, किसी चर्च में मस्जिद में बुलाएंगे वहाँ भी जाऊँगा। और वो आए। उनका भाषण इतना एक्सेलेंट है। मंदिर का अर्थ क्या होता है वो समय नहीं है, तो मैं कुछ बातें शायद फ्लो में आई तो मैं बताऊंगा, लेकिन पूरा पत्र पढ़ने जैसा है। ये केवल पूजा का स्थान नहीं है मंदिर। उन्होंने कहा कि भारत उद्योग प्रधान देश था। हमको जो कहा जाता है, वी आर मेड टू बिलीव कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये सुनते आए हैं। लेकिन भारत का दुनिया भर में व्यापार सर्वाधिक मोर देन 30% था। वर्ल्ड ट्रेड में शेयर हाईएस्ट फ्रॉम 1st AD टू 1500 AD, जबकि यूरोप अमेरिका मिलाकर 2% से कम था। तो दुनिया भर में व्यापार करने भारतीय लोग जाते थे, बेचते क्या थे? कृषि प्रधान देश है, खेती अच्छी थी लेकिन खेती प्रधान नहीं थी। जब मैं लोगों से पूछता हूँ, पीपल कम विद एन आंसर कि स्पाइसेस कम लास्ट। एक्चुअली भारत में टैनिंग इंडस्ट्री अच्छी थी। चमड़े जानवर मरने के बाद उनके चमड़े को टैनिंग प्रोसेस से उसकी अनेक वस्तु बनाने की कला टेक्नोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ पर अच्छी मेटलर्जी थी। आयरन और कॉपर और जिंक, इसके और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, कास्टिंग, मोल्डिंग था। यहाँ पर अलॉय बनते थे, पीतल बना, ब्रास, कांसा बना, उसकी वस्तुएं बनती थी। यहाँ परफ्यूम इंडस्ट्री अच्छी थी, क्योंकि भारत के फूलों में ही फ्रैग्रेंस, सुगंध है। भारत के बाहर के फूलों में रंग है, फ्रैग्रेंस नहीं है। यहाँ इत्र बना। कपड़ा उद्योग एक्सीलेंट था। स्पाइसेस कम लास्ट। ये सारी चीज़ें बनती थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, ये घरों में बनती थी। घरों में उद्योग थे। ऐसे घर गांव में होते थे। और घर के बच्चे अपने आप घर में ही काम करते करते सारे स्किल सीखते थे। इसलिए तो किसी को ITI वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये प्रोडक्शन हाउस घर में होता था। घर की माता का इस प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन होता था। डिजाइनिंग, क्वालिटी कंट्रोल में खास ध्यान देती थी वो। तो शी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द वेल्थ क्रिएशन इन द इंडस्ट्री एट होम। महिलाओं को घर में रखकर पुरुषों को बाहर पैसा कमाने के लिए जाना पड़ता है। ये अंग्रेज आने के बाद क्या आया एबरेशन है। वह लक्ष्मी के उत्पादन में सहायता करती थी, लक्ष्मी को संभालती भी थी। और घर का पुरुष जब माल बेचने के लिए बाहर जाता था तो 4-6 महीने के बाद वापस आता था। तब तक सारा घर का कारोबार महिलाएं संभालती थी। इसलिए उसको गृह लक्ष्मी कहने की पद्धति इसलिए पड़ी है। वो घर की लक्ष्मी थी, घर की लक्ष्मी उसके पास रहती थी। राइट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ वेल्थ, हैंडलिंग इट, प्रिजर्विंग इट, यूजिंग इट, उसका स्वयं का से उसमें होता था। इसलिए बारिश के बाद, कार्तिक महीने के बाद, दिवाली के बाद लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे और अगले बारिश के पहले आते थे, क्योंकि खेती की एक फसल निकल जाती थी। अगली बुआई, जो खेत की जुताई होने के पहले ये वापस आते थे। इसलिए पुराने फिल्मों में ऐसे गीत हमने सुने होंगे, सावन आया बादल आए मेरे पिया नहीं आए, ऐसे गीत होते थे। क्योंकि सावन आने वाला है, बादल छा रहे हैं, बारिश शुरू होगी, उसके पहले इसका पति घर आने वाला ही है। कब आएगा? टेलीफोन तो था नहीं उस समय, पत्र नहीं था। तो एक आतुरता, उत्सुकता, पिया गए परदेश, ऐसी जो गीत होते थे, उसका अर्थ यह है। और भारत के लोग दुनिया भर में गए। वी डिड नॉट कॉलोनाइज द पीपल देयर, वी डिड नॉट कॉलोनाइज दोज लैंड्स, वी डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम, आवर पीपल डिड नॉट प्लंडर देयर रिसोर्सेस। उनको गुलाम बनाकर व्यापार नहीं किया, जो अरबों ने किया, गोरे लोगों ने किया। बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी है। यानी अफ्रीका के ब्लैक लोगों के ऐसे जैसे गधे, घोड़े, बैलों के जो मार्केट होते हैं, ऐसे मार्केट में खड़े होकर उनके भाव बोली होती थी। उस पर अनेक पुस्तकें लिखी गई है। भारत ने ये नहीं किया,
भारत एक अलग बात है। इसलिए भारत को ठीक से समझने की आवश्यकता है। भारत की एक अपने आप की 3 विशेषताएं हैं दैट डिफाइंस, डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज भारत सदियों से। पहला है भारत का जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण, द वर्ल्ड व्यू जो है, व्यू टू लुक एट द वर्ल्ड, ये डिफरेंट है। जो सेमेटिक मूल के सब थॉट्स अब जिनका प्रभाव खूब दिख रहा है, वो हर एक पर अपना कब्जा जमाने चाहते, रिसोर्सेस पर, पॉलिटिकल पावर पर, मिलिट्री पावर पर, ताकि शोषण चलता रहे। सो कॉल्ड वेस्ट है, जिनको डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, इनका सारा जो प्रॉस्पेरिटी है ये शोषण पर आधारित है। इसलिए एक उत्तम पुस्तक है ग्लोबल पैरासाइट्स नाम की। पैरासाइट्स वो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों का शोषण करके अपना पोषण करते हैं, जिनका शोषण करना उनको और अधिक पुष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे ताकि उनका और हम शोषण कर सके। डेवलप्ड नेशंस हेल्पिंग द अनडेवलप्ड नेशन टू डेवलप, डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन उनका ट्रैप है, उसके बाहर नहीं जा सकते आप। उनको इतना पुष्ट नहीं होने देंगे ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इनका शोषण करना रुक जाएगा, ये भूखे मरेंगे। देन द राइटर ऑथर राइट्स, देयर द सो कॉल्ड वेस्ट्स आर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन केप्ट ऑन चेंजिंग। फर्स्ट इट वाज रिलीजन, then it was empire, and now it is WTO, IMF and World Bank. ये जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, they wanted to devise new methods to continue the exploitation. क्योंकि अब इंडिपेंडेंस अनेक देशों को देना पड़ा, कॉलोनीज वाला जमाना खत्म हो रहा था। इस पर भी अनेक पुस्तकें हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अधिकारी जॉन परकिंस की पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। दूसरे एक अधिकारी जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। तो जो इन लोगों ने, ये सेमेटिक मूल के लोगों ने, दे थिंक ऑफ द वर्ल्ड इन बाइनरीज, वी एंड अदर्स। और भारत ने कभी अदराइजेशन का विचार नहीं किया, वसुधैव कुटुंबकम की है, बिकॉज भारत का जीवन का दृष्टिकोण विशिष्ट है, स्पेशल है, यूनिक है, बिकॉज इट इज स्पिरिचुअलिटी बेस्ड, अध्यात्म आधारित है। इसलिए वो होलिस्टिक है, इंटीग्रल है, एकात्म है, सर्वांगीण है। इट्स इज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, नॉट द ह्यूमन, एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, जिसका उल्लेख हुआ, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है। इस भारत के व्यू ऑफ लाइफ ने भारत में रहने वाले सभी भाषाभाषी, सभी जाति जनजाति, पहाड़ का, मैदान का, गांव का, नगर का, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, सभी लोगों के जीवन को शेप दिया है। एंड एवरीबॉडी कनेक्ट्स विद दिस आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी के, इस भारत की पर्सनैलिटी के 4 प्रमुख सेलिएंट फीचर्स है। भारत ऐसा जीता आया है। नंबर 1, एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती, सत्य, ट्रुथ, ईश्वर एक है और एक ही है, इसमें अंतर है। भारत ने कहा एक है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, सब समान है। इसलिए भारत ने कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया। तो कभी कभी भारत के साथ लोग टॉलरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। टॉलरेंस में भी इनबिल्ट इनटॉलरेंस है। व्हेन आई से दैट आई कैन टॉलरेट यू, मतलब मेरा तो मारने का मन कर रहा है, बट 4 लोग बैठे, अच्छा दिखता नहीं है, सो आई विल टॉलरेट यू, इजंट इट? बर्दाश्त कर रहा हूँ, मतलब उसमें इनटॉलरेंस है। शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के समय ज़्यादातर लोग यही मानते थे कि उनका ही सत्य रिलीजन है, बाकी सब झूठ है। उनके रिलीजन को फॉलो करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, बाकी नरक में ही जाएंगे।
उनको नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य, डिवाइन ड्यूटी हमको ही करनी है, क्योंकि सत्य हमारे ही पास है। उसके दो ही मार्ग है, कन्वर्ट देम बाय फोर्स, फ्रॉड, अल्यूरमेंट और किल देम। ऐसी असंख्य हत्याएं हुई है। उसमें थोड़ा उदार देखने के लालसा वालों ने कहा कि लेट अस नॉट किल देम, वी वांट टू किल यू बट डजंट लुक गुड, सो दे केम विथ ए लिबरल टर्म, लेट अस टॉलरेट देम टिल दे गेट कन्वर्टेड। ऐसे था। उसमें विवेकानंद कहते वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑलवेज टू बी ट्रू। सबका स्वीकार, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, ये भारत की विशेषता है। उसमें स्वामी जी कहते हैं आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर इन अवर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देयर इज नो सिनोनिमस वर्ड फॉर एक्सक्लूजन। शब्द ही नहीं, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट एक्सक्लूड एनी बडी, एनीथिंग, इंक्लूड ऑल, चराचर। दूसरे, टू से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक ही चैतन्य अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, तो डाइवर्स फॉर्मेशंस के भीतर रही एकता को देखने की दृष्टि भारत की रही है। इसलिए भारत का वर्णन जो होता है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, हमने खूब सुना है, बट दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। वी डोंट हैव डाइवर्स कल्चर्स। सही बात यह होगा, अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की दृष्टि देने वाली, उसकी छूट देने वाली, स्वातंत्र्य देने वाली हमारी संस्कृति है कि उसका आधार अध्यात्म है। तीसरी विशेषता है एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ह्यूमन फॉर्म में जो है, स्त्री पुरुष दोनों में, यह पोटेंशियल डिविनिटी इक्वली विद्यमान है। यह दुनिया में केवल भारत मानता है, बाकी लोग नहीं मानते। And the goal of human life is to manifest the divinity within by controlling nature, internal and external. अंतर्गत बाह्य प्रकृति का नियमन करना है, कंट्रोल। इसलिए उपवास क्यों करना, व्रत क्यों करना, कार्तिक महीने में सर्दी में ठंडे पानी से क्यों नहाना, कावड़ यात्रा क्यों करना, बिना चप्पल पहने मंदिर तक क्यों जाना। ऐसे अनेक है जो अपने प्रकृति का नियमन करते हुए अंदर के देवत्व को प्रकट करने के लिए, ये प्रकट करने के मार्ग हर एक का अलग अलग हो सकता है। देयर आर 4 मेजर वेज: वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल, मेडिटेशन। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। बीइंग एक्सक्लूसिव, ये भारत का विषय नहीं, इसलिए एक को लिया तो दूसरे को टच नहीं कर सकते, ऐसा भारत में नहीं है। कैथोलिक, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट चर्च में प्रेयर नहीं कर सकते, और सुन्नी लोग शिया के मस्जिद में जाकर बॉम्ब डाल के आते, हमने न्यूज़ पढ़ी होंगी। कोई एक ही लो ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एनी ऑफ दिस 4 और 2 और मोर और ऑल एंड बी फ्री। मुक्त होना, तो हर एक का मुक्त मोक्ष की तरफ जाने का जो मार्ग है, इट कैन बी ए वेरिड कंपोजिशन ऑफ दिस ऑल 4। मेरा अगर 50% कर्मयोग है तो मेरी सिस्टर का 50% भक्ति योग हो सकता है, तो मेरा भाई 50% ज्ञान योग में ज़्यादा मानता है, मंदिर में कम जाता है। इट्स अलाउड। तो हर एक का मुक्ति के तरफ जाने का मार्ग इज इंडिविजुअल, ए वेरिड कंपोजिशन ऑफ ऑल दिस 4। कोई भी एक हो सकता है, कोई भी 2 हो सकते हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रपोर्शन हो सकता है। इट्स अलाउड। ये अपने अपने मोक्ष का मार्ग को हमारे यहाँ उपासना कहा है, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। धर्म एकदम डिफरेंट है। रिलीजन धर्म का एक अनुवाद करने से बहुत सारा कन्फ्यूजन निर्माण हुआ है। जैसे घर में एक घर की एक टेस्ट होती है, खाना बनता है, माँ खाना बनाती है, 5 लोग हैं, फिर भी किसी बेटे को लगता है कि सब्जी में आज थोड़ा तीखापन कम है, थोड़ी मिर्ची की चटनी मिला लेगी उसमें। बेटे को लगता है कि थोड़ा खट्टापन कम है, थोड़ा नींबू लेमन का रस उसमें डाल देगा। थर्ड पर्सन में थिंक कि खट्टा तीखा दोनों चाहिए, वो दोनों मिला लेगा। चौथा को थोड़ा मीठा खट्टा मिला लेगा। हर एक को अपना अपना टेस्ट एडजस्ट कर लेता है और सब लोग उसी भोजन का पूर्ण आनंद लेते हैं।
रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथजुषाम। इसलिए ठेंगड़ी जी संघ के बहुत बड़े श्रेष्ठ चिंतक वो कहते थे कि भारत परंपरा में रिलीजन उपासना है, धर्म नहीं, रिलीजन ये हर एक को अपना मार्ग चुनने का स्वातंत्र है, लिबर्टी है, फ्रीडम है। वो कहते कि इन भारत द रिलीजन इज पर्सनल एज पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। घर में 5 लोग हैं, 5 का ब्रश अलग अलग होता है, एक दूसरे को नहीं चलता है। और ये चुनने का स्वातंत्र, इसलिए भारत में परंपरा से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है, इसलिए कभी कन्वर्ट करने का सवाल ही नहीं है, उसको लेकर झगड़े नहीं हुए। ये जो चारों बातें हैं भारत की, इन चारों बातों के साथ सारे यानी ट्राइबल वगैरह हिंदू नहीं वगैरह ऐसे एक नैरेटिव चलता है। लेकिन हमारे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी संघ के सरकारी पहले आसाम क्षेत्र प्रचारक थे, उन्होंने आसाम में इतनी वेरी ट्राइबल्स है, उनके वेश अलग है, भाषा अलग है, एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती है। ऐसे 18 ट्राइबल्स के स्कॉलर्स को एकत्र किया और 6 विषयों के बारे में उनके ट्राइब में क्या कंसेप्ट्स हैं यह हर एक को कहने के लिए बोला। ईश्वर के बारे में क्या कल्पना है, धरती के बारे में क्या कल्पना है, आप प्रार्थना में क्या मांगते हैं, व्हाट डू यू प्रे। दूसरे अन्य रिलीजन के लोगों को देखकर मन में क्या विचार आता है, एंड डू यू बिलीव इन कन्वर्शंस। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान में आया। सभी ने, जिनका वेश अलग थे, भाषा अलग थी, सभी के उत्तर समान थे, जो भारत के वैदिक परंपरा से जुड़ते थे। पहली बार सबने रियलाइज किया, ओह सारे भारत के साथ हमारे विचार तो एक ही है। तो इसको दुनिया ने नाम हिंदू दिया है, हमने दिया नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप को अलग दुनिया से अदर मानते नहीं थे। लेकिन जब बाहर गए तो बाहर के लोगों ने कुछ अलग, ये तो थोड़े डिफरेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो दे गिव द नेम। क्योंकि सिंधु नदी पार करके आ रहे थे, स को ह बोलने का रिवाज। तो आज भी आसाम में संघ को हंग कहते हैं, संपादक को हमपादक कहते हैं, संपर्क प्रमुख को हमपर्क प्रमुख कहते हैं, स को ह कहते हैं। मैं सबसे पहली बार आसाम में गया तो मेरा दायित्व था अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख। तो सभी शाखा मेरा परिचय होता था अखिल भारतीय हमपर्क प्रमुख, ऐसे ही बोलते थे। और गुजरात में स को ह बोलने का रिवाज है, वहाँ सांप को सरप कहते, लिखते सरप है और बोलते हरप है। सूरत को हुरत कहते हैं। तो स का हुआ नाम पड़ा, हमारा नाम है, सबका साझा नाम है, इसमें कुछ कमी नहीं है, कुछ खराब नहीं है, न्यून नहीं है। ये एक रिच भारत का हेरिटेज है। और भारत का हर व्यक्ति इस पहचान के साथ, नाम में अंतर हो सकता है, कोई कहेगा ये हिंदू शब्द ने हमको भारतीय कहना है, कोई बात नहीं है। लेकिन भारतीय शब्द को एक ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन तो आ ही जाता है। जब मैं नेपाल गया था, नेपाल के अपने छात्रों से बात कर रहा था, स्वयंसेवकों से, वहाँ पर हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से काम चलता है। जब मैं भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन कह रहा था, दे ऑब्जेक्टेड, क्योंकि उनके लिए भारत एक दूसरा देश है। सो भारतीय कहने से दे कैन नॉट कनेक्ट, हिंदू कहने से दे कैन वेरी इजीली कनेक्ट। तो मॉरिशस का हिंदू फिजी का हिंदू है, त्रिनिदाद का हिंदू है, केनिया का हिंदू है, उसके देश अलग है, नागरिकता अलग है, उनके लिए भारत दूसरा देश है। परंतु हिंदू कहते ही दे कैन वेरी इजीली कनेक्ट। समानार्थी व्याप्ति अलग अलग है। भारतीय के इंडिक का है, सनातन में कोई कहता है, वास्तव में सनातन ये हिंदू का एडजेक्टिव है, हिंदू उसका नाम है। राम जी का एक संदेश लेकर, पत्र लेकर एक व्यक्ति गया सीता जी को देने के लिए। अब सीता का नाम मैथिली है, इसके दिमाग में मैथिली था, तो मिथिला नगरी में प्रवेश किया तो पूछा कि मैथिली का घर कहाँ है। तो लोगों ने पूछा कौन सी मैथिली भैया, यहाँ तो हर घर में मैथिली है। मिथिला की पुत्री मैथिली हो गई, इसको एक ही मैथिली पता था। सिर खुजाया, अरे मैथिली मैथिली, अचानक याद आया उसका एक नाम जानकी भी है। तो कहा जानकी क्या जाना है, हाँ ठीक है राजमहल में जाओ। राजमहल में गए,
वहाँ द्वारपाल से पूछा कि ये पत्र जानकी को देना है, कहाँ मिलेगी? उसने पूछा कौन सी जानकी? यहाँ 4 जानकी है, क्योंकि जनक को 4 पुत्रियाँ थी, चारों जानकी थी। फिर सिर खुजाया, सीता, हाँ सीता, यहाँ जाओ। तो ऐसा इंडिक भारतीय कहने से अंतर नहीं है, लेकिन सीता जैसा एकदम स्पेसिफिक है, वैसा हिंदू एकदम स्पेसिफिक है। लेकिन आप जो उपयोग करो, हमको दिक्कत नहीं, कोई उसको जान के क्या मैथिली क्या बाहर तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। और यानी भारत की विशेषता रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है अपने स्वदेशी समाज में कि विविधता में एकता देखना और अनेकता में ऐक्य प्रस्थापित करना, यह भारत का अंतर्निहित धर्म है। भारत विविधता को, डाइवर्सिटी को भेद नहीं समझता और पराय को दुश्मन नहीं मानता। इसलिए नए मानव समूह के संघर्ष से खूब लोगों से हमारा मिलना जुलना होगा। नए लोग मिलने से हम भयभीत नहीं होंगे, उनकी विशेषताओं को पहचान कर, आइडेंटिफाई करते हुए, बाय प्रिजर्विंग देम विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, ऐसा खास उल्लेख किया है। उनको साथ रखने की विलक्षण क्षमता, एसिमिलेशन की क्षमता भारत रखता है। आगे वो लिखते हैं, इसलिए भारत में हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई परस्पर लड़ते हुए दिखेंगे, पर वे लड़कर मर नहीं जाएंगे। वे एक सामंजस्य यहाँ भारत में स्थापित करेंगे ही। दे विल कम टू ए मीटिंग पॉइंट। आगे का वाक्य महत्व का है, यह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेष भाव से हिंदू, ये कहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक हिंदू वे ऑफ लाइफ, उन्होंने कहा कि दुनिया भर इतनी नज़दीक आया भी, क्योंकि आवागमन के मार्ग बहुत गतिमान हो गए हैं, विद ऑल द डाइवर्सिटीज ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन्स और सोर्सेस पर अपना कब्जा जमाने की लालसा, इन सब के बीच में सबको अगर प्रॉस्परस, हारमोनियस, पीसफुल लाइफ, लंबे समय तक यूजिंग द रिसोर्सेस जुडिशियसली जीना है, आई कैन सी ओनली द हिंदू सोल्यूशन। ये राधा कृष्णन ने कहा है अपनी पुस्तक में हिंदू वे ऑफ लाइफ में। और स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, उनका पहले भाषण में व्हेन ही थैंक्ड द अमेरिकन पीपल एंड द ऑडियंस एंड द ऑर्गेनाइजर्स ऑन बिहाफ ऑफ भारत, उन्होंने भारत की 3 तरफ से अपनी पहचान बताई है। पहला शब्द, उनका पहला वाक्य था, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मदर ऑफ सॉरी आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मोस्ट एंशंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सर्वाधिक प्राचीन सन्यासियों की परंपरा की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आगे का, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स की माता है। अनेक रिलीजन आएंगे, सब साथ रहेंगे, नए नए भी आते रहेंगे। ये आखिरी वर्ड है, इसके आगे कोई नहीं आएगा, ये लास्ट प्रॉफिट वगैरह, ऐसा भारत ने कभी नहीं कहा है। यहाँ तो भगवान ने यह वचन दिया है, जब जब धर्मों को गुलानी होगी, अधर्म का उत्थान होगा, मैं बार बार आऊँगा, ऐसा कहा है। नया एक मार्ग बताऊँगा। और तीसरा कहा, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदूज लिविंग इन इंडिया। तो ये भारत की पहचान है। दूसरी भारत की विशेषता स्वदेशी समाज में टैगोर लिखते हैं कि वे जो यूरोपियन नेशन स्टेट कंसेप्ट में, वहाँ पर वेलफेयर स्टेट है, सारा कुछ सरकार करेगी, राजा करेगा, यही लोगों की आदत है। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा कभी ऐसे नहीं थी, वी वर नेवर वेलफेयर स्टेट। जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये 4 डिपार्टमेंट्स केवल राजा के पास होते हैं। राजा कितने भी होंगे। हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा, इन सब के समाज की अपनी व्यवस्थाएं थी। इसके लिए ट्रेजरी से धन आता नहीं था, समाज देता था। उन्होंने व्याख्या की है, वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर, स्टेट पर कम से कम डिपेंडेंट होता है, वह स्वदेशी समाज है। एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वह खंभा टूटता है, तंबू धराशायी होता है। 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, तंबू खड़े रहेगा, वो टूटे खंभे को अंदर से खड़ा करने की सुविधा रहेगी। भारत की रचना ऐसी थी, जहाँ पर वेलफेयर स्टेट है, एक खंभा टूट गया, सब खत्म हो गया। भारत में
जो पश्चिम में नेशन है वो 16वीं शताब्दी के देन है, वो स्टेट नेशन कंसेप्ट है। यहाँ पर समाज राष्ट्र है, इसलिए राजा पराजित हुए, परकियों का आक्रमण हुआ, परकियों का राज्य आया, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में बाहर के गोरों ने जाकर वहाँ के स्थानिक लोगों का कत्लेआम किया, उनको कोने में धकेल दिया, पूरी जमीन कब्जे कर ली, एक नया देश आरंभ किया। माउरीज है यहाँ पर, एब्रोनिल्स है यहाँ पर, रेड इंडियंस है। लेकिन ग्रीस नाम का देश है, ग्रीस में बाहर से आकर लोगों ने कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। आज जो ग्रीस नाम के देश हैं, वहाँ के रहने वाले, उस ग्रीस के जो पहले था बहुत एक समृद्ध प्रॉस्परस ऐसा एक कंट्री था, उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं आज, वही लोग हैं। लेकिन ग्रीस में एक देखते हैं कि पुरानी बातों से कनेक्शन कुछ नहीं है, ज़मीन वही है, लोग वही है, कनेक्शन पूर्ण छूट गया है। ग्रीस में किसी परिवार में बालक का जन्म होता है, कहीं पर भी आपको बालक का नाम सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, पाइथागोरस, गैलीलियो सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन भारत में आज भी कहीं पर भी नचिकेता, ध्रुव, प्रहलाद, गार्गी, मैत्रेयी, उर्मिला, जाह्नवी सुनने को मिलते हैं। कनेक्शन है आज भी, कारण ये भारत का राष्ट्र राज्याधारित कभी नहीं था। ये भारत की विशेषता। और तीसरी भारत की विशेषता ऐसी है कि मैंने केमिस्ट्री में PhD किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, बाद में संस्कृत स्कॉलर है, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंट होगा, कोई मैनेजमेंट प्रोफेशन है, डिजाइनिंग कोई कर रहा है। इन सबको अपने शास्त्र में अविद्या कहा है। अविद्या ये खराब नेगेटिव नहीं है, जैसे धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति अनीति, ऐसा नहीं है। अविद्या इज रिलेटेड टू द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत से संबंधित सारा वो अविद्या है। विद्या क्या है? जो अध्यात्मिक विद्या, जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है, सिखाती है। इसलिए कई स्कूलों में लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्त है, या विमुक्त है सा विद्या। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे सभी विद्यालयों में अविद्या ही पढ़ाई जाती है, विद्या को नहीं पढ़ा जा रहा है, वो बात अलग है। ईशावासी उपनिषद का 9वां श्लोक कहता है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो केवल अविद्या की उपासना करते, केवल भौतिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। उसकी अगली पंक्ति है ततो भूयैवते तमो य ओम विद्यायाम रताः। और जो केवल विद्या में रहते हैं वे और गहरे अंधकार में प्रवेश करते से कहा है। और 11वें श्लोक में कहा है विद्याम च अविद्याम च यह तद उभयम वेदः। दोनों को साथ जाना है। अविद्या मृत्युम तीर्थव, अविद्या के आधार पर भौतिक समृद्धि प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करेंगे, और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के आधार पर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए धर्म की व्याख्या की यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय मतलब भौतिक समृद्धि है, निःश्रेयस मतलब मोक्ष है। संघ की प्रार्थना में भी समुत्कर्ष निःश्रेयस कहा है। भौतिक समृद्धि की मना ही नहीं है। योग्य मार्ग से खूब पैसा कमाओ, अपने लिए कम खर्च करो और समाज को वापस लौटाओ। और समाज को वापस लौटाने को हमारे यहाँ धर्म कहा है। धर्म की एक व्याख्या मैं ऐसे करता हूँ कि ओपन योर आइज एंड क्लोज योर कैपिटल आई। मैं छोटा करो, आंखें खोलो। द सर्कमफरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स। हम का दायरा बड़ा होता है तो जो हमारे नहीं वे भी अपने लगने लगते हैं, उनके लिए करने का मन होता ही है। ये करना ये धर्म है। अभी कोरोना वायरस हमने देखा है, दुनिया भर में था। जर्मनी, कोरिया, जापान, इंग्लैंड, इजराइल, अनेक देशों में था, भारत में भी था। लेकिन भारत के सिवाय सभी देशों में ओनली स्टेट एम्प्लॉयज वर एक्टिव टू सर्व एंड सेव पीपल। भारत में स्टेट एम्प्लॉयज तो एक्टिव थे ही, मेनी ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, लेकिन काम किया है, ड्यूटी की है अपने। लेकिन भारत ऐसा द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले हैं।
और फ्लड अर्थक्वेक के बाद जाकर सेवा करना, रेलवे एक्सीडेंट के बाद जाकर सेवा करना डिफरेंट। एक हाईली इन्फेक्शस, हाईली फैटल बीमारी है, पता नहीं मेरी जान को खतरा हो सकता है, यह जानते हुए लाखों लोग, लिटरली लाखों, दुनिया भारत भर में सब प्रकार के प्रदेशों में हर प्रकार के जाति जमाती निकले हैं। ये धर्म है, जिन्होंने ड्यूटी की उनका कर्तव्य के नाते धर्म था। इनका धर्म, ये मैं छोटा हुआ, हम बड़ा हुआ, समय कम है इसलिए अधिक मैं नहीं बताऊंगा। ये भारत का जो इसलिए समृद्धि के साथ साथ समाज को वापस करना है, लौटाना है। ये धर्म कल्पना स्पष्ट है। और समाज स्वदेशी उसी पर होता है कि राज्य पर नहीं, समाज के ऐसे क्रियाकलापों पर सारा आधारित होता है। और ये भारत के निर्माताओं के मन में स्पष्ट होगा। इसलिए भारत में लोकसभा में लिखा है, स्वाधीनता के बाद लोकसभा बनी, पार्लियामेंट सिस्टम हमने स्वीकार की, उसमें लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो जया है। रॉ नाम का संगठन है, उनका ध्येय वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता है। और भारत के राष्ट्र ध्वज में जो चक्र है वो धर्म चक्र, व्हील ऑफ धर्म है। व्हील है तो घूमने के लिए है, हाउ इट विल रोटेट। एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी गिव्स ए पुश टू द व्हील ऑफ धर्म एंड इट मूव्स। एक अमृतलाल बेगड़ नाम के एक अच्छे साहित्यिक लेखक चित्रकार हो गए। वो नंदलाल बोस नाम के एक फेमस पेंटर शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ एज ए फैकल्टी वहाँ चित्रकला सीखने गए, 5 साल वहाँ रहे। एक 20 ईयर्स यंग बॉय गोज देयर। 5 साल के बाद लौटे, जब नंदलाल बोस को चरण स्पर्श किया आशीर्वाद देने के लिए, मेरा जीवन शुरू करने वाला हूँ। उनके शब्द थे आशीर्वाद के, कहा बेटा तेरा जीवन सफल ना हो, लेट योर लाइफ बी नॉट सक्सेसफुल, ऐसा आशीर्वाद होता है कोई। आगे कहा कि दुनिया में सफल होने वालों की कोई कमी नहीं है, उनके नाम रोज अखबार में आते हैं। फिर कहा तुम अपना जीवन सार्थक करना। देन ही राइट्स, इंटरप्रेट्स कि सफलता मतलब मटेरियलिस्ट लाइफ है, गाड़ी बंगला पैसा वगैरह, उसको गलत नहीं है। उतना ही सीमित जीवन ठीक नहीं है। समाज से हमके बहुत मिलता है, समाज को वापस करना, लौटाना, ये धर्म है। इसलिए विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना में एक श्लोक है, जीवने यावत आदानम, जीवन जितना लेते हैं तथा अधिकम प्रदानम स्यात्, उससे अधिक हम वापिस कर सके, ऐसी हमारी प्रार्थना भगवंत परिपूर्यता। ये भारत है। और इसलिए अब दुनिया इतनी नज़दीक आई। मैं जब गया था 92 में यूएस में, तब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। आज डायरेक्ट फ्लाइट से नेट है, इंटरनेट है, सीधी बात हो सकती है देखकर। तो लिमिटेड सोर्सेज ऑन द प्लैनेट, ऑल द डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, सब इतने नज़दीक आए हैं। इफ द एंटायर ह्यूमैनिटी हैज़ टू लिव इन प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी एंड पीस, भारत हैज़ द सोल्यूशन। भारत हैज़ द फिलॉसफी, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस। ऐसा भारत खड़ा करेंगे तो दुनिया को जो भारत पता है, ऐसा भारत दुनिया देखेगी। हम गर्व से कह सकेंगे भारत इज़ द सोल्यूशन। भारत हैज़ द सोल्यूशन तो बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रविंद्रनाथ डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा कि हिंदू सोल्यूशन ही है और कुछ नहीं है। ऐसा भारत खड़ा करना, इसलिए भारत को अपने स्वत्व की दिशा में सारी अपनी नीतियाँ, शिक्षा नीति, रक्षा नीति, विदेश नीति, भारत की अर्थनीति करनी पड़ेंगी। जो हम जिसको डिनाई कर रहे थे, अब थोड़ा उस दिशा में भारत चलना शुरू हुआ है। आखिरी बात कहकर मेरी बात पूर्ण करूँगा। 2014 के बाद के चुनाव के रिजल्ट आए। द रिजल्ट्स वेयर आउट ऑन 16 मई 2014। जैसे इस बार चुनाव के 4 जून को आए थे, तो संडे गार्डियन इज ए पेपर पब्लिश फ्रॉम ब्रिटेन ऑन संडे। डेली पेपर का नाम द गार्डियन है। द गार्डियन एंड संडे गार्डियन, बोथ द पेपर्स पब्लिश फ्रॉम ब्रिटेन, कैरिड वन एडिटोरियल ऑन 18th May of 2014, that was Sunday.
The first three sentences are, first they say, today 18th May 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India. ये वहाँ का ब्रिटेन का पेपर लिख रहा है एडिटोरियल में, बड़ी बोल्ड बात लिखी है. Narendra Modi's victory in these elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled this subcontinent. India under Congress Party was in many ways a continuation of British Raj by other means. इसके ऊपर एक शीर्षक एक वाक्य है, दैट इज मोर इंसाइटफुल. वो है, वो लिखते हैं, इट शुड बी ऑब्वियस दैट द अंडरलाइंग चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी हैज ब्रॉट अस मिस्टर मोदी एंड नॉट द अदर वे अराउंड. तो भारत में जो एक जागरण चल रहा है राष्ट्र का, उसमें संघ तो है ही, केवल संघ नहीं है, अनेक संत है, स्पिरिचुअल पर्सन्स है, सोशल रिफॉर्मर्स है, मदर्स है, जो घर में बैठकर अपने बालकों को, बच्चों को सारा सिखा रही है. इस कारण जो राष्ट्र जागरण हो रहा है, इस जागरण के कारण ये एक परिवर्तन आ रहा है. भारत अपनी स्वत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है. और एक आर्टिकल अगर आप रेफर कर सके तो पढ़िए, वो भी 22 मई 2014 का है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है. उसका टाइटल बताऊंगा, कंटेंट नहीं बताऊंगा, समय हो गया है. और द टाइटल सेज हाउ मोदी डिफीटेड लिबरल्स लाइक मी. इतना उन्होंने पूरी सारी कबूली दी है कि क्या क्या हमारी गलतियां हुई है. तो इसलिए भारत का जो स्वत्व है वो जाग रहा है. 14 के बाद भारत की विदेश नीति में अंतर आया है. यूक्रेन हमास भारत ने जिस तरह हैंडल किया है एकदम एग्जेम्पलरी है. डिफेंस नीति में परिवर्तन आया है. शिक्षा नीति नहीं आई है, उसको लागू करने में समय लगा, बात सही है. डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे विद्वान व्यक्ति की अध्यक्षता में हायर एजुकेशन कमीशन 1948 में नियुक्त हुआ था. इतने सुंदर रिकमेंडेशन है, लेकिन लागू नहीं हुए. अब लागू हो रहे हैं. और भारत की अर्थनीति भी जो अर्बन सेंट्रिक सेंट्रलाइज के बदले डिसेंट्रलाइज रूरल ओरिएंटेड खेती आधारित जो पहले थी, खेती भी अच्छी, उद्योग भी अच्छे, ऐसा भारत फिर से खड़ा हो सकता है. दिशा हमको पहले तय करनी पड़ेगी, उस दिशा में लंबे समय तक सतत चलना पड़ेगा. तो भारत हैज़ द सॉल्यूशन, नो डाउट अबाउट इट, बट भारत इज़ द सॉल्यूशन, ये कहने की स्थिति में हम लोग आ सकते हैं. आपने मुझे बुलाकर उस पुस्तक के बहाने इस विषय पर मुझे अपने बात रखने का मौका दिया, इसलिए आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. And your speech made us, retrospect our identity and what Bharat truly is about. You gave an overview of that, and I think most of us, have had something like an awakening and enlightenment today. Now the floor is open for question and answer session, the interaction session. Please raise your hand. The volunteer would come to you and give you the microphone. मैं तैयार हूँ. समय है कि आप देखिए, और कभी तो भी किसी को कहना पड़ेगा, ये लास्ट क्वेश्चन कहना पड़ेगा. हाँ, आप उनको स्वयं का परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन, एंड देन आई कैन आस्क. जी नमस्ते, माय नेम इज़ प्रसाद पेकेटी. अराउंड द वर्ल्ड nowadays Islamic radicalization and left narrative seems to be gaining upper hand. In these times, as an individual, what we can do so that we can fight this fake narrative? ऐसा है कि जो लेफ्ट नैरेटिव आप कह रहे हो, ये पहले से चल रहा है. भारत के संदर्भ में they were more powerful than today. They had power, they had media, they had money, everything they had. और भारत की बात करने वाले के पास क्या था? न पावर थी, न मीडिया था, मीडिया में बात आती ही नहीं थी अपनी, और पैसा भी नहीं था. सत्य की अपनी ताकत होती है और समाज का सहयोग मिल रहा है. ये जो है, दे आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल. बैटल विल कंटिन्यू, ठीक है ना. और दुनिया भर के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है लीड कौन लेगा, अल्टरनेट क्या किसके पास है.
तो भारत के पास है कम्युनिज्म, कैपिटल, दो ही रास्ते थे पहले, दोनों के समान प्रॉब्लम से कुछ। देयर इज ए थर्ड वे, तत्वबोध ठेंगड़ी का पुस्तक है थर्ड वे। तो भारत हैज टू प्रूव, हाँ यहाँ आप आइए देखिए, समय लगेगा। 150 साल का अंग्रेज़ों का शासन और 60-65 का काले अंग्रेज अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, उसको सही करना है 25-30 साल लगेंगे। द थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग, चक्र घूमना शुरू हुआ है, समय लगेगा। ये मीडिया में चर्चा खूब चलेगी एंड ये बहुत लंबी लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं था, बहुत सारी बातें हमारी हैं, हमारी बातों का भी कॉग्निशन लोगों को लेना पड़ रहा है। सो दे आर फाइटिंग ए लूजिंग बैटल, लेकिन बैटल चलेंगी और लास्ट फेज ऑफ बैटल इज ऑलवेज फियर्स। इसलिए जिसके बलबूते पर हम लोग अब तक आगे बढ़ते आए हैं उसको पक्का मजबूत रहना है। नए नए टूल्स को हमको सीखना पड़ेगा। जैसे महाभारत युद्ध में तो अर्जुन कुछ विशेष अस्त्र प्राप्त करने के लिए परशुराम के पास गए थे, ठीक है ना। युद्ध करना है, सब प्रकार के अस्त्र मेरे पास भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए, लेकिन हमको अपना मुख्य आधार है उसको नहीं छोड़ना है, तो होगा। चलिए, और यहाँ भी 2 लोग हैं, आप ये भी देखना क्रम में पहले इस तरह का। हाँ, और मेरा नाम संतोष पांडे है। हाँ, 2014 का आपने जिक्र किया, 2024 के चुनाव के परिणाम को संघ कैसे देखता है? ये संघ का कार्यक्रम नहीं है। मैंने 14 को संडे गार्डियन ने क्या लिखा हुआ बताया है, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल प्रश्न भी नहीं, मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ, इस पुस्तक की बात कर रहा हूँ। ये प्रश्न नहीं लेंगे, ठीक है, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन 2014 के जो रिजल्ट्स आए उसको ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला गार्डियन कैसे देखता है उसको मैंने बताया है, दैट्स इट। चलिए, और कौन है? नमस्कार सर जी, मेरा नाम श्रीकांत है। तो बचपन से ही जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो स्कूल फॉर्चुनेटली मेरा स्कूल भी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड था, लेकिन पढ़ाई के दौरान मुझे लगता था कि जो मैं शिक्षा हासिल कर रहा हूँ वहाँ पे, वो किसी न किसी तरह से मुझे अपने देश के जुड़ाव से दूर कर रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या कोई ऐसी थियरी पे किसी ने वर्क किया है जो कंक्लूसिवली साइंटिफिकली ये जस्टिफाई कर सके कि इंडिया इतना महान, इतना ग्रेट क्यों है, यहाँ पे इतने साधु संत और इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी डाइवर्सिटी इतने छोटे से लैंड में कैसे आ गई? और अगर ये थियरी अगर फ्यूचर में आ जाती है या फिर ऑलरेडी है, तो इसको वर्ल्ड कैसे देखेगा और इसे कैसे ट्रीट करेगा? सर, आपका प्रश्न एग्जैक्टली क्या है? सर, क्योंकि मेरे अंदर जो शिक्षा ने मुझे तैयार किया, तो वो मेरे अंदर का जो शिक्षार्थी था वो किसी न किसी बहाने से ये मानने को तैयार ही नहीं होता था कि भारत पहले से ही महान है, ठीक है। तो ऐसी थियरी के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ जो ये एक्सप्लेन कर दे कि भारत सही में पहले से महान है। ठीक है, अभी तो बहुत पुस्तक है, अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। जो लड़का हॉस्टल में रहता है ना, और हॉस्टल का भोजन बहुत पौष्टिक नहीं होता है, तो अपने घर से घी का डिब्बा ले जाता है, थोड़ा कुछ अड़दिया वगैरह कहते हैं, ऐसा कुछ पौष्टिक ले जाता है ताकि सपोर्ट ठीक रहे, दूध वगैरह पीना शुरू कर देता है। इसलिए जिनको पाठ्यक्रम नहीं मिला वो लोग बाकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं ना, हमने नहीं पढ़े, हम तो पढ़िए, समय निकालिए, बहुत अवेलेबल है, ठीक है। भारत के लोगों ने भी लिखा है, एकदम आधुनिक टर्मिनोलॉजी में लिखा है, बाहर के लोगों ने लिखा है, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा। और हमको भी आदत कैसी हुई कि अंग्रेजी गोरे व्यक्ति ने कहा था, मुझे लगता है कि ये तो बात पक्का सही होना चाहिए, ऐसे गोरों ने भी लिखा है, ठीक है, एक लंबी लिस्ट है। चलिए, और कौन है? हाँ महोदय, मेरा नाम एस रविचंद्र राव है। आपने कहा था कि मंदिर को अर्थव्यवस्था का एक केंद्र बनना है या था, तो मैं हैदराबाद में देखता हूँ कि कई छोटे बड़े मस्जिद हैं, उसमें एक केले बेचने वाला, सब लोग दोपहर में बैठते हैं, खाना खाते हैं, और हर मस्जिद के 10-15 दुकान होते हैं। लेकिन अभी मैं मंदिरों को देखता हूँ कि मंदिर किसी हिंदू व्यापारी को क्षेत्र नहीं देता है दुकान चलाने के लिए, न दोपहर में गरीब हिंदू को बैठने के लिए, सोने के लिए देता है। ऐसा करने के लिए मैं प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए और कितना समय लेगा? ठीक है, धन्यवाद।
ऐसा है, राजेंद्र प्रसाद का लेख अब अगर स्पीच सुनेंगे, एक बार उसको पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा। तो मंदिर ये इकोनॉमी का भी आधार थे। जैसे भी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300th एनिवर्सरी चल रही है, उन्होंने भी अच्छा शासन भी किया है, युद्ध भी किया है, स्ट्रैटेजिकली सारी बातों को प्लान भी किया है, तीर्थों का उद्धार किया है, अनेक देश भर के मंदिर खड़े किए हैं, और व्यापार उद्योग को भी उन्होंने सहायता की है। महेश्वर नाम का स्थान, वहाँ की साड़ी प्रिंटिंग वगैरह पूरे को देखा है। तो इसलिए क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पहले हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था, तो दुनिया भर से सोना चांदी भारत में आती थी, लूट करने आते थे। ये डेवलप्ड नेशंस ने लूटा है लिटरली। एक मैंने चुटकुला सुना, एक 2nd ग्रेड के बच्चे को उसकी माँ डांट रही थी कि तुम्हारे क्लासरूम में रिप्लाईज पॉलिटिकल उद्देश्य से तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है स्कूल से। स्कूल टीचर ने बताया 2nd ग्रेड के विद्यार्थी को माँ डांट रही है, ऑन ए कंप्लेंट ऑफ द टीचर दैट योर रिप्लाईज इन द क्लासरूम आर पॉलिटिकल। कल्पना करो, वो कहता है अपने माँ से कि मैडम आस्क्ड अस व्हाई आर पिरामिड्स इन इजिप्ट। आई रिप्लाइड, ही सेड दे वर टू हेवी फॉर द ब्रिटिश टू स्टील, नहीं तो उठा कर ले जाते। इतना लूटा है। भारत ने ये नहीं किया है, व्यापार करके समृद्धि आती। उन्होंने कहा आज जैसे अनेक देशों के बैंकों में सारा गोल्ड वगैरह होता है, ऐसी बैंक्स नहीं थी, तो ये मंदिरों में होता रहा। सोमनाथ मंदिर में सोना क्यों होता उतना, ये समाज का होता था। तो मंदिर ये समृद्धि का लक्षण है, ठीक है, ऐसा कहा। इसलिए कहा कि आज तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर की, लेकिन भारत वो समृद्धि के शिखर पर पहुंचेगा तब ये मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण, ऐसा मैं मानूंगा, ऐसा उनका भाषण है। वो मंदिर के प्रेमाइसेस की बात नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि भारत के सांस्कृतिक मूल्य की ऊंचाई भी जो थी, वहाँ तक लोगों को सांस्कृतिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी मंदिरों के द्वारा ही होती है। मंदिर पहले रामायण काल पहले मंदिर थे ही नहीं, लेकिन सामाजिक संगठन करने के लिए, जागरण के लिए मंदिरों की व्यवस्था निर्माण हुई है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की ऊंचाई बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, तब ये मंदिर निर्माण कार्य, कल पत्थरों का मंदिर तो जल्दी बन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, मैं हुआ ऐसा मानूंगा, ये मुख्यतः कहा है। बाकी हमारे मंदिर चलाने वाले लोगों को दृष्टि देनी चाहिए। वहाँ का जो धन आ रहा है उसका विनियोग हम इन चारों बातों में कैसा कर सकते हैं। ऐसे कुछ जगह प्रयोग हुए हैं, हमको सिखाना पड़ेगा। वो केवल आय का साधन नहीं है, ठीक है ना। धर्म के चरण की बात है। मेरे पहचान का एक परिवार, मारवाड़ी परिवार, अहमदाबाद में रहता है। घर की माँ देवी की भक्त है। अहमदाबाद से अंबाजी नाम का देवी का क्षेत्र 180 किलोमीटर दूर है। संपन्न परिवार है, अच्छा व्यापार है। ये हर महीने कार लेकर अंबाजी माता जी का दर्शन करने जाती रही है। उस फैमिली को जानता हूँ मैं सिंस ईयर 2000, सिंस लास्ट 24 ईयर्स। वो शादी के बाद 25 साल तक हर महीने जाती रही। वहाँ बच्चे भी मांगते ही है, देती रही है, कभी ना नहीं कहा किसी को। 25 साल के बाद वन फाइन डे, आज से 15 साल पहले, अब वो दादी बन चुकी है, उनके पोते हो गए हैं। आज के 15 साल पहले, आफ्टर 25 years ऑफ कंटिन्यूअस यात्रा, फॉर द फर्स्ट टाइम इसका मैं छोटा हुआ, हम बड़ा हुआ। जो दिखता था लेकिन वो देख नहीं रही थी, उसने देखा। बच्चे भी मांगने आते हैं, ये लेकर जाती थी, क्या देना है। फॉर द फर्स्ट टाइम ए थॉट ऑकर टू हर, इनको स्कूल में जाना चाहिए, इनकी आयु स्कूल में जाने की है, पढ़ने क्यों नहीं जा रहे, यहाँ भी क्यों मांग रहे हैं। 25 साल तक ये विचार ही नहीं आया था। अंदर से जवाब आया, इनके पेरेंट्स के पास पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे, मैं खर्च करूँगी। पैसे पहले भी थे, विचार नहीं आया था। She talked with the girls and boys. Everybody was ready to go first to school. उसको इतना अच्छा लगा, उनके पेरेंट्स से बातें की। पेरेंट ने कहा, बहन जी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। ये भीख मांग कर लाते तब हमारे घर में चूल्हा जलते। हमारे लिए पेट की भूख महत्व की है, पढ़ाई नहीं। She did not expect this, but that was reality.
Immediately she made up a mind, made a list of the people, families जिनके बच्चे भीख मांगते हैं, ऐसे 50 फैमिलीज थी। गत 15 वर्षों से इस 50 फैमिलीज के घरों में हर महीने राशन का किट पहुंच रहा है ताकि भूख मिटे, चूल्हा जले। बच्चों को स्कूल में एडमिट किया है, यूनिफॉर्म, बैग्स, फीस, बुक्स, स्कूल दूर है, स्कूल बस खरीदी है, ड्राइवर का वेतन, सारा ये शक्ति नाम का ट्रस्ट बनाया, उसके माध्यम से कर रही है, अपने खर्चे से कर रही है। वापिस आने के बाद बच्चों को अपने घरों में पढ़ने का वातावरण नहीं है, एक अभ्यासिका बनाई है। जनवरी 2020 में मैं उनके साथ उनका ये काम देखने गया था। जाति तो है रिमिर, ये कर रही है, तो मैं कहता हूँ 25 साल तक उसका रिलीजन उपासना चल रही थी, धर्म अभी चल रहा है। तो उपासना तक सीमित न रहे, उसके बियॉन्ड आगे जाकर दिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस उपासना हेल्प यू टू स्पिरिचुअली एलिवेट योर सेल्फ एंड द वी का एक्सपांशन और बड़ा बड़ा हो सकता है, देने का मन करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो इसको मंदिरों के लोगों को भी हमको ये बात करने पड़ी, सिखाना पड़ेगा। तो मंदिर के आसपास केवल नहीं, तो जो उनका कैचमेंट एरिया होगा वहाँ के लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से स्वयं कुछ करें। यहाँ पर कनेरी मठ नाम का एक मठ है नियर कोल्हापुर, आध्यात्मिक मठ ही है। वो हॉस्टल चलाते हैं लड़कों लड़कियों के लिए, 12 साल वहाँ रखते हैं, 8 साल के बच्चों को एडमिट करते हैं, 12 साल रखते हैं। क्या पढ़ाएंगे बताते हैं, और हर एक से 1 लाख रुपया डिपॉजिट लेते हैं ताकि वहाँ वेद पढ़ाते, आयुर्वेद पढ़ाते, होम साइंस पढ़ाते, खेती पढ़ाते, मॉडर्न साइंस सब पढ़ाते हैं, अनेक उद्योग पढ़ाते हैं। हम गए थे वहाँ पर, उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि हम किसी को, यानी ग्रेजुएशन तक पढ़कर लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन कहा हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों नहीं? उन्होंने कहा सर्टिफिकेट देंगे तो कहीं सर्टिफिकेट दिखाकर जॉब मांगने जाएंगे। वी एक्सपेक्ट देम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। तो 12 साल पूर्ण होने के बाद उनका 1 लाख रुपया वापस करते हैं, उनको 5 लाख रुपया सीड मनी के नाते टू स्टार्ट हिज और हर ओन थिंग ये शुरू कर देते हैं। तो एक नया खड़ा हो रहा है, लोग आ रहे हैं वहाँ पर, तो ये करना पड़ेगा। चलिए समय देखिए, लास्ट क्वेश्चन जी। ये लास्ट क्वेश्चन जी। नमस्ते, मेरा नाम मानव है और मैं 12 वर्ष से संस्कृत भारती का कार्य करता हूँ। प्रसाद जी के प्रश्न का आपने जो उत्तर दिया कि 25-30 वर्ष में जो ये फॉल्स नैरेटिव है ये पलट जाएगा, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी एक और चिंता भी है कि आधुनिक जो समाज है और जो आधुनिकता का, भौतिकवाद का जो चिंतन अब हमारे हिंदू समाज के ही मन में बैठ गया है, जिसकी वजह से हमारे अपने अंदर ही बहुत त्रुटियां आ गई हैं। ऐसा नहीं दिखता कि हम अपनी भाषा भी बोलते हैं, ऐसा नहीं दिखता कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो वो जो आप कनेक्शन की बात कर रहे थे अभी है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो कम होता दिख रहा है। तो इस दिशा को हम कैसे बदल सकते हैं? क्या ये बदलेगी या नहीं? बिलीव इन द न्यू जनरेशन, डोंट डाउट देम, उनमें खूब क्षमता है, उनसे डायलॉग कीजिए, दे आर विथ यू। नॉर्मली हम लोग उनको भाषण देते, उपदेश देते, हमारे ज़माने में क्या करते थे वो बताते, सो दे रन अवे फ्रॉम यू। मेरा अनुभव उल्टा है, मैं 2 बातें अवॉइड करता हूँ, उनको उपदेश नहीं करता, और हमारे ज़माने में क्या करते थे वो नहीं बताते। दे कम एंड सिट विथ मी फॉर आवर्स टुगेदर, और उनमें थोड़ा अंदर जो है उसको इग्नाइट करता हूँ मैं। दे चेंज देयर कोर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि है ही, क्योंकि वही अमृत से पुत्रा है ही, अंदर हर एक में पोटेंशियल डिविनिटी है ही, उसको जगाने की आवश्यकता है। समय कम, हमारा कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, उस पर पहले विश्वास चाहिए, ठीक है ना। और जो पश्चिम का चिंतन मानता है दैट टाइम ट्रेवल्स इन ए लीनियर वे, बट भारतीय चिंतन मानता है कि इट ट्रेवल्स इन ए साइक्लिक वे। तो काल चक्र है, तो काल चक्र में डिसेंड एसेंड रहने वाला है। अब भारत का एसेंड शुरू हो गया है, नोबडी कैन स्टॉप इट। संघर्ष होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के हित के लिए भारत का ठीक होना, गौरव बढ़ना ये आवश्यक है। लेकिन ये भारत ऐसा रहेगा ऐसा भी आवश्यक नहीं है। नहीं तो भगवान कृष्ण जैसे पूर्णावतार ने धर्म स्थापना करने के बाद भी
कहना पड़ा, कह गए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य उत्थानं भवति। अब साक्षात भगवान ने धर्म स्थापना किया, वैसे रहना चाहिए ना, वही गरेक नहीं रहेगा, ये चलते रहने वाले चक्र। तो भारत का एसेंट शुरू हुआ है, ये भारत के गौरव के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक है। भारत हैज़ टू राइज, भारत इज राइजिंग, भारत विल राइज। अपने आप नहीं होगा, विश्वास पूर्वक, और आने वाली पीढ़ी के स्पेंड मोर टाइम विद देम। हो क्या रहा है, हमारी जो बड़ी जनरेशन है बच्चों को सुविधाएं खूब दे रही है, समय कम दे रहे हैं। सुविधा देने में खर्चे खूब हो रहे, तो पैसा कमाने में लगे हैं। एक विद्यार्थी को 10th में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, उसके पिता उसको एक महंगी रिस्ट वॉच भेंट की। अपने फ्रेंड से कह रहा था, मेरे पापा ने मुझे रिस्ट वॉच दी है, घड़ी दी है, लेकिन समय नहीं दे रहे, ऐसा बताया। समय दीजिए। एंड दे आर प्रॉमिसिंग, रियली प्रॉमिसिंग। दे विल आस्क क्वेश्चन, यू अलाउ देम, प्रोवोक देम टू आस्क क्वेश्चंस। तो इफ दे आर कन्विंस्ड, पहले क्या था, पहले माता पिता ने कह दिया ऐसा करो वैसा करो तो कर लेते थे। ये पीढ़ी ऐसी है, ये क्वेश्चन करेगी। मैं कई बार देखता हूँ, मैं कहीं अगर स्टूडेंट बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो गूगल करके चेक करते रहते, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। अब यू हैव टू डील विद दिस पीपल। वो कन्विंस होते हैं, दे आर विथ यू, रेडी टू चेंज। आदतें लोगों की चेंज हुई है, बहुत मेरे पास उदाहरण है, समय कम है, तो इसलिए आप सबका धन्यवाद फिर से एक बार। धन्यवाद मनमोहन जी, टेकिंग फॉर आवर क्वेश्चन। फ्यू सूचनास, washrooms are available in the left side of the exit and book stall. Now we are moving towards the end of the program. I would request Ayush to come forward and give the concluding remarks. Thank you. Namaste to all. So I stand in front of you on behalf of Samvit Kendra as the General Secretary. We had a thoroughly invigorating intellectual session both by Ambaji and Manmohan ji, and the question answers also are very revealing. Some of the books that Manmohan ji had mentioned, about 8 to 10 books he has referred, they are this Pilgrimage to Freedom, India They Saw, Swadeshi Samaj, Confessions of an Economic Hitman, Renaissance of India, Hindu View of Life. They are also available in our stall as well as our online store, Hindu eShop. So please do take out time and read through it. Arpit said, those who want to buy this book, please buy. I'm saying, those who want, we have to buy this book, because this in a capsule, it gives an entire overview of what we are thinking, not only today, but for the coming decades, the direction in which this movement is headed. So please do take out time and read. There is one more initiative which Manmohan, with inspiration of Manmohan ji, was started for young teenagers and yuvatis. It is called Nivedita Endeavor for Social Transformation. It is called NEST. So that is another initiative for Kishori and yuvatis. Those who are who want their teenage girls or young daughters to join that movement, please do also contact me. I can connect you with the appropriate persons here. So after this program, what? So this comes the next question. A lot of us, we have Shravananandam, right? We hear and we like, and then we go back. From tomorrow our offices start. This hall has a distinction that we had our first Samvit Kendra session here close to 10 years back. Bajrang Lal ji had spoken about cultural economy in this very hall here. So after, just before that, we had started a series of study centers in Hyderabad, in our Bhagyanagar. So somewhere in 2012 November, we started our study circle called Samvit. It got registered as an organization in 2014. So right now we run 4 study circles in different parts of city. One is running in Lingampalli, one in Narayanguda, Tirmalgiri. There was one center which was running in this part of the city also, Gachibowli and Maidipatnam. So that, जैसा मितकाल चलता है, कभी कभी चलता है, बंद होता है. So we want volunteers for this center here, for this space. This is what we do here is we there are certain topics on which we want to study,
and then we prepare presentations and then some papers on that, articles. Then some of us can go as speakers onto campus also. So what are the subjects that we have taken up? There are 4 major heads on which we are operating. One is on the history, unknown aspects of history. We focused on Hyderabad liberation to begin with. Then we moved on to Telangana history, some heroes, forgotten heroes of Andhra and Telangana. We are happy to inform that, we are actually delighted to inform that the book that we introduced, Liberation Struggle of Hyderabad, and the subsequent books in Nizam's Rule Unmasked, they were the first 2 books in English on that subject from our Indic perspective. And the recent movies that we see on this subject, there is some contribution of our books also in that. So that is how an intellectual activity can translate into vivid media, different forms. So when we start any small writing activity and reading activity, we feel that we have written only an article. Sometimes Kuldeep ji asks, "Isse kya hoga Ayush ji? Ek article se kya hota hai?" But it has a long impact. It takes time, but it translates. So history is one part, especially icons. Second is on cultural economy, temple economics, cultural economy, social fabric, how the changes that have happened, what was our base of social fabric, how it contributed to the overall development of the society, and also doing a study of contemporary society. So it's not just about history, to apply something on current affairs also, in the current stage of society. So we're working with one couple of professors in Central University of Gulbarga of Karnataka also on this subject. Samvit was a joint partner for a couple of seminars with them. The third subject, which is of very high importance, is the subject of the questions that came up on narrative. One major thing that is emerging, especially in states like Telangana, is subaltern studies and subaltern icons. So gods have been started to become classified. So they say these gods are Brahminical gods, these are SC gods, these are BC gods. So that is the line in which today we are celebrating Bonalu. This also is likely to, there is a movement that is trying to hijack this from the mainstream Hindu idea of our worship and our dharma. So some studies are also required about what are the studies that are happening on subaltern studies. So observing them, watching them, this is another group that we are working on. We want people to volunteer. And the fourth is on technology and society. So emerging, the new texts that are emerging, AI, new emerging tech, and what is going to be their impact on society, and how can we address those challenges. So these are 4 major heads. There are a lot of other aspects also we can work on. But if any of you are interested in contributing in subjects of this nature, please do contact Ramakrishna ji. Okay. So Lakshman Rao ji, Arpit ji, I am also there. So please do connect with us. We will be more than glad to restart this study center here. And on behalf of Samvit Kendra, I would like to thank the G. Narayanamma Institute of Technology. Very short notice, we had some challenge in another place where we had earlier fixed. Within 24 hours, they were willing to give this hall. So we are very grateful to them, the management, for enabling this program to be successful. Also very thankful to Professor Amba Kulkarni ji. As a professor, she's in doing Sanskrit and mathematics, both very tough areas for all of us. So she's balancing that and taken out time to address this gathering here. Special thanks to Dr. Manmohan Ji Vaidya. While in Sangha we don't have this pratha of thanking, but since it is Samvit Kendra, he has been in the last 3 days he has addressed 2 different programs for us. He came for our Akhil Bharatiya Bauddhik Sharirik Varga in Rashtriya Vidya Kendra, but he has taken out time for 2 events. We had one book launch on Man of the Millennia, Dr. Hedgewar, a couple of days back, and today he's shared his thoughts with us. Dhanyavad Manmohan ji. And special thanks to Sunil Bhai Mehta and Deepak ji for also coming and sharing their time, investing their time with Samvit Kendra. And a very big thanks to and gratitude to all of you. Even though there is this change in time, change in place, you are all, you have taken out time on a Sunday evening, come to this place and making this program a success. Dhanyavad to all of you.
as we come towards the end of the program, we would like to conclude the program with the national anthem. I request each one of you to please stand up. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गा